Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the decomposition of price effect into the substitution effect and the income effect. As we know, any change in price will have an impact on the quantity demanded of that particular commodity. Okay, but how this change in price will change the quantity demanded of that particular good based on the substitution and change in purchasing power. First, let me tell you some basics about it. First, like this is a graph. So this is your budget line AB, and first this is your budget function. Okay, so it's like any change in prices, price of X or price of Y will affect this particular budget line. This is AB. Okay, so based on this, like this, here you have good X and here you have good Y. So point A, you are consuming 0 Y. So when you consume 0 Y, this whole terms become 0, and you will in with respect to Y, when we calculate this, you will get Y is equals to M by Py, and similarly when you put Y is equals to 0, you will get X is equals to M by Px. These are the extreme points. Okay. So at point A, you have M by Py, and at point B, you have M by Px. Okay. So this is your budget. A, B, this red line is your budget line. Okay. And what is the slope of this budget line? Your slope of budget line is represented by the price ratio. Slope. Okay. Slope tells you that any change in the prices, either of the good X and good Y, will affect the slope of the budget line. Okay, it's like any change in price of X or any change in price of Y will rotate this price line either upwards or either downwards. Okay, so suppose अगर price of, let's consider the price of X. Okay, एक और बनाते हूँ ग्राफ आपके लिए. This was your earlier budget line. Okay, and you know your slope is equals to price of X, price of Y. So now consider like price of X has fallen. Okay, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया है. तो प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ है, दैट मीन्स ये ओवरऑल स्लोप कम हो गया आपका. व्हाट इज दिस स्लोप? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, राइट? तो दैट मीन्स ये ओवरऑल आपका स्लोप कम हो गया. जब भी आपकी किसी भी कर्व का स्लोप कम होता है, दैट मीन्स वो कर्व फ्लैट हो जाएगा. क्योंकि आपका प्राइस ऑफ एक्स में ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या था? एम बाई पी वाई. आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस में ऑफ बाई में भी कोई चेंज नहीं रहा है, तो ये पॉइंट एज इट इज रहेगा. बट आपका प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो गया. इस पॉइंट पे आपका था एम बाई पी एक्स. अभी क्या हो गया? जैसे एम बाई पी एक्स है ये. अभी जो है सपोज आपका इनकम है 10, आपका प्राइस था 4 और लेट्स से 2 इनिशियल प्राइस. तो आपका टोटल वैल्यू आ रहा था 5. तो आपका सपोज करो ये 5 वैल्यू आ रहा था. नाउ आपका इनकम 10 है लेकिन प्राइस हो गया 1, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया, तो यू हैव 10. तो ये इस पॉइंट पे सपोज यू हैव 5 एंड इस पॉइंट पे यू हैव 10. ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? आपकी जो बजट लाइन है विल रोटेट आउटवर्ड्स. सो इन केस ऑफ प्राइस डिक्रीज, आपकी बजट लाइन विल रोटेट आउटवर्ड्स. ओके, सो नाउ यू हैव दिस m by px dash. At a new price, your budget line will touch the horizontal axis at this point b dash. Okay. So in short, आपको ये याद रखना है कि अगर प्राइसेस में कोई चेंज आता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी इधर अपवर्ड्स इधर डाउनवर्ड्स. तो इस केस में क्योंकि हमारा इस वाले केस में प्राइस ऑफ एक्स कम हुए थे, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट हुई.
अगर प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज आता है तो ये रोटेशन होगा ऑन द वाई एक्सिस, ओके, लाइक दिस. So again, this is your original budget line. Okay, let me. Okay, this is your original budget line AB. Now, like price of X वही है, price of Y कम हो गया. अगर क्या है, ये कम होगा तो ये ओवरऑल बढ़ जाएगा. दैट मीन्स स्लोप ज्यादा हो जाएगा आपका. स्लोप ज्यादा हो जाएगा दैट मीन्स स्टीप हो जाएगा आपका कर्व. आपकी जो बजट लाइन है वो जब भी स्लोप कम होगा तो आपकी जो बजट लाइन है, या आप किसी भी कर्व का स्लोप देख रहे हो, उसका अगर स्लोप कम हो रहा है तो वो फ्लैट हो जाएगा. एंड अगर ये जो स्लोप ज्यादा हो रहा है तो वो कर्व स्टीप हो जाएगा. सो इस केस में क्या था कि हमारा प्राइस ऑफ एक्स जो है कम हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ओवरऑल स्लोप कम हो गया. स्लोप कम हो गया दैट मीन्स वो कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. तो आप देख कंपेयर कर सकते हो बिटवीन दिस रेड बजट लाइन एंड दिस पर्पल बजट लाइन. आपकी जो पर्पल बजट लाइन है वो फ्लैट है कंपैरेटिवली टू दिस रेड लाइन. ओके, बट इन केस अगर आपका प्राइस ऑफ वाई कम होता है तो आपका ओवरऑल ये जो है बढ़ जाएगा. सपोज अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे हमारा प्राइस ऑफ एक्स 2 था, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसको. हमारा प्राइस ऑफ एक्स 2 था एंड हमारा सपोज करो प्राइस ऑफ वाई जो है ये भी 2 था अर्लियर. सो यू हैव अ स्लोप इक्वल्स टू 1. नाउ आपका प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, 2 से 1 हो गया. अभी आपका स्लोप क्या है, 2. तो अर्लियर आपका स्लोप 1 था, नाउ आपका स्लोप 2 है. बस स्लोप ज्यादा हो गया. स्लोप ज्यादा होना मतलब जो भी आपका कर्व रहेगा वो स्टीप रहेगा. ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर, जस्ट वेट. अगर आपका कर्व ज्यादा रहेगा दैट मीन्स आपको जो भी आप कर्व ड्रॉ करोगे वो स्टीप दिखना चाहिए, लाइक दिस. क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं आया इसलिए पॉइंट बी सेम रहेगा एज इट इज, लाइक एम बाई पी एक्स. प्राइस ऑफ एक्स में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा. एट पॉइंट ए यू हैव दिस एम बाई पी वाई, बट एट पॉइंट ए डैश यू हैव, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया बट आपका प्राइस जो है कम हो गया, राइट. तो आपका जो आप यहाँ पे से देख के कंसिडर भी कर सकते हो, जो आपका पर्पल बजट लाइन है दैट इज स्टीपर देन दी रेड बजट लाइन. ओके, तो आपको अभी ये एक चीज पता चला होगा कि एनी चेंज इन द प्राइसेस ईदर ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई विल लीड्स टू द रोटेशन इन द बजट लाइन. ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब मैं पूरा डिकम्पोजिशन ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगी. तो ये बेसिक्स है. नाउ लाइक नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि हमारा कर्व शिफ्ट करता है, तो शिफ्ट कब आता है, इस केस में जो है रोटेशन आ रहा है क्योंकि वी हैव प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई एज आर स्लोप. बट अब शिफ्ट कैसे आएगा, so as we know our budget function looks like this: m is equal to price of x into x plus price of y into y, right. तो अगर जो ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड. तो अगर आपकी कोई भी वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, उनमें से अगर किसी भी वेरिएबल में चेंज आता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी. ओके, बट अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी. ओके, तो अगर हमारी इनकम में कोई चेंज आएगा तो हमारी जो है पर्टिकुलर बजट लाइन शिफ्ट करेगी इधर अपवर्ड्स इधर डाउनवर्ड्स. अगर इनकम बढ़ी है तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, एंड आपकी इनकम कम होगी तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी. ओके, लाइक दिस. This is your earlier budget line, and now I'll tell you both the change. Suppose this is your original budget line. Okay, same thing, but
नाउ आपकी इनकम सपोज अभी 10 रुपए थी ओरिजिनल इनकम, अभी आपकी न्यू इनकम हो गई 20 रुपए। इनकम बढ़ गई, आपकी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी अपवर्ड्स। एंड सिमिलरली अगर आपकी ओरिजिनल इनकम 10 थी एंड अब आपकी जो न्यू इनकम है एम डैश वो होगी 5, तो आपकी बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी अंदर की तरफ। बट इससे क्या है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज वी नो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू द प्राइस रेशियो। तो इसमें इनकम कहीं पे भी है नहीं, तो दैट मीन्स एनी चेंज इन इनकम विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर स्लोप, क्योंकि ये स्लोप नहीं अफेक्ट चेंज नहीं स्लोप अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। इस वजह से हमारा जो है शिफ्ट आएगा बजट लाइन में विद द चेंज इन इनकम। ओके, क्योंकि ये पैरेलल शिफ्ट है, तो स्लोप ऑफ दिस रेड बजट लाइन, स्लोप दिस पर्पल बजट लाइन इज सेम। यहाँ पे भी स्लोप ये प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई रहेगा, इस पॉइंट पे भी स्लोप यही रहेगा, इस पॉइंट पे भी ये स्लोप रहेगा, इस पॉइंट पे भी यही स्लोप रहेगा। एट ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाइक ए बी एंड सी योर स्लोप विल रिमेन द सेम। बट इन केस अगर आपका प्राइस ऑफ एक्स और वाई में कोई चेंज आता है, तो उस केस में आपका स्लोप चेंज होता है। एंड क्योंकि आपका स्लोप चेंज होता है, तो आपकी बजट लाइन जो है रोटेट करती है इधर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, बट इनकम चेंज हो रही है, इनकम आपके प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करती है, आपके स्लोप को अफेक्ट नहीं करती है। इस वजह से इट विल लीड्स टू द पैरेलल शिफ्ट either upwards either downwards. Okay, these are the basics. And third point, we know consumer equilibrium. मैंने काफी सारी वीडियो, अब तो मेरे को लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो। लाइक व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट क्या होता है जहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिराइव होता है। तो एज वी नो कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही और शी वांट टू मैक्सिमाइज his or her utility given the budget constraints like prices and income, or he wants to minimize his expenditure given the level of satisfaction, right? This point E represents this rational behavior of a consumer. Okay, so we can depict it using the graph. Okay, this is our budget line. This is your indifference curve. So now I hope आपको पता होगा indifference curve क्या होता है, बट मैं एक बार बता देती हूँ। indifference curve represents the ओके इनवर्ड इंडिफरेंस कर्व वो होता है जहां पे एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई यू डिराइव द सेम यूटिलिटी। ओके, तो अगर आप इस पॉइंट पे कंज्यूम करते हो, या आप इस पॉइंट पे कंज्यूम करो, या इस पॉइंट पे कंज्यूम करो, या इस पॉइंट पे कंज्यूम करो, आपकी जो यूटिलिटी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट यू डिराइव विल रिमेन द सेम। आपके जो कॉम्बिनेशन है जो गुड एक्स एंड गुड वाई के, वो चेंज हो जाएंगे, बट द यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन विल रिमेन द सेम। सपोज आप इस पॉइंट पे आप वाई ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कम एक्स कंज्यूम कर रहे हो, बट आपको यूटिलिटी लाइक यू बार यूटिलिटी मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे कंज्यूम करते हो, आप लाइक दिस मच आप वाई कंज्यूम कर रहे हो एंड दिस मच एक्स कंज्यूम कर रहे हो, still you will get this much of utility, and similarly for this point. So along an indifference curve your utility will remain the same, but you will have a different combinations of good x and good y. Okay, okay, so the tendency point between your budget line and an indifference curve represents the equilibrium. Okay, so this point of tangency is the equilibrium point. Okay, and at this point the combination of good x and good y represents the optimum bundles of good x and good y that will give a consumer maximum satisfaction, maximum utility given his level of income and the prices in the market. Okay, or you can say that consumer will minimize his or her expenditure given the level of utility or the satisfaction. Okay, so this is the point of equilibrium. This point represents the consumer's equilibrium. So ये तीन बेसिक बातें थी। अब
Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.